Good morning students. In previous video we started discussing about the fact that we can get more produce from the same field or same piece of land. First was by multiple cropping. In last video we also discussed about multiple cropping, means to grow more than one crop in a year from the same land. And now proceeding with the chapter, the second method is by using modern farming methods, which you can better understand by this picture. See, HYV seeds, then fertilizers here, and pesticides, then the methods of irrigation such as dams, canals, pump sets, and in this picture this is also shown that through the dams hydroelectricity can be produced, and this electricity can by this electricity pump sets or any other kind of equipment can be used in villages so that farming or irrigation will be easier. And also the modern farm machinery, this using tractor instead of a pair of ox or bullocks. Instead of traditional tools, for this tractor is used, and to run tractor it is diesel is used. What is used? Diesel fuel it is required. So we can say that productivity of land can be increased by using these all things. Now proceeding with the chapter, you have seen that one way of increasing production from the same land is by multiple cropping. The other way is to use modern farming machinery for higher yield. ज़्यादा पैदावार के लिए ये यूज़ की जाती है. Yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season. एक मौसम में जो क्रॉप प्रोड्यूस किया जाता है उससे कितना उत्पादन हुआ ये पता चल जाता है. अब 1960 पालमपुर जो विलेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वहाँ पे 1960 के बाद मॉडर्न इक्विपमेंट और डेवलपमेंट शुरू हुआ था. तो ये 1960 से पहले द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस विथ रिलेटिवली लो यील्ड्स. वो थोड़ा सा कम पैदावार दिया जाता था, उससे कम पैदावार होती थी. ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन, उन्हें इतना सिंचाई की भी पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी. फार्मर्स यूज्ड काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइज़र, और फार्मर्स भी काउ डंग या जो नेचुरल मैन्योर होता है उसे फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर लेते थे. और ये सब चीज़ें उन्हें उस विलेज में आसानी से आराम से मिल जाती थी. उन्हें उसको who didn't have to buy them, उन्हें ख़रीदना नहीं पड़ता था. The Green Revolution in the late 1960s. Green Revolution was introduced in 1966-67. Now what is Green Revolution? The use of chemical fertilizers, pesticides, medicines, advanced seeds, modern agriculture, equipments, large irrigation projects to increase agricultural production. All these which we have discussed through this picture, all these are shown in this picture. These all are used in that time to increase the agricultural production. तो ग्रीन रेवोल्यूशन में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए
इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। अब ये जो HYV सीड्स होते हैं मीन्स हाई यील्डिंग वैरायटीज सीड्स, तो ये जो होते हैं वो वीट और राइस, क्योंकि वीट और राइस स्टेपल फूड ऑफ इंडिया, तो इसके लिए इन्हीं को मुख्य भोजन था ये गेहूं और चावल। तो जो इंडियन फार्मर्स थे उनसे इन्हीं की पैदावार ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये सिस्टम या ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया था। Compared to traditional seeds, the HYV seeds promised to produce much greater amount of grain on a single plant. ये ज़्यादा अमाउंट में पैदावार हो जाती थी, इतनी ज़्यादा मतलब डबल से भी ज़्यादा हो जाती थी पैदावार। As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grains than was possible earlier. पहले के कंपेयर में अब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस किया जा सकता था। HYV सीड्स however needed plenty of water, मतलब ठीक है प्रोडक्शन तो ज़्यादा होता था, लेकिन अब उन्हें प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी भरपूर चाहिए था, केमिकल फर्टिलाइज़र अच्छा सा चाहिए था, पेस्टिसाइड्स चाहिए था ताकि अच्छा रिजल्ट्स मिल सके, यानी पैदावार ज़्यादा मिल सके, हाई यील्ड मिल सके। Higher yield were possible only from a combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizers, pesticides, etc. ये सब चीज़ें होंगी तभी ये पॉसिबल हो सकता था। The farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming method in India. The farmers in these regions set up tube wells for irrigation. उन्होंने पूरा सेटअप लगा दिया ट्यूब वेल्स वगैरह का ताकि इरिगेशन इजीली किया जा सके। उसके अलावा उन्होंने HYV सीड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स सबका खेती में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने तो फार्म मशीनरी भी खरीद ली, जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर्स, विच मेड प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर, जिनसे कि हल चलाना और जो फसल काटना आसान हो गया। दे वर रिवार्डेड विथ हाई यील्ड ऑफ व्हीट, उन्हें काफ़ी अच्छा पैदावार गेहूं की मिली। इन पालमपुर द यील्ड ऑफ व्हीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वेराइटीज वॉज 1300 kg पर हेक्टेयर। जब पहले किया जाता था ट्रेडिशनल तरीक़ों से, तो फिर उनकी पैदावार हुआ करती थी पर हेक्टेयर 1300 kg, लेकिन अब इन मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स और HYV सीड्स इन सब से कितना पहुंच गया 3200, मोर देन डबल। सी 1300 kg एंड 3200 kg, मोर देन डबल। There was a large increase in the production of wheat. Farmers now had greater amounts of surplus wheat to sell in the markets. अब किसानों के पास बहुत ज़्यादा अमाउंट एक्स्ट्रा व्हीट का हो गया था कि वो बाज़ारों में उसे बेच सकें। तो हमने यहाँ पे दो तरीके की मेथड देखे फार्मिंग के कि किस तरह से सेम पीस ऑफ लैंड से इंक्रीज किया जा सकता है। फर्स्ट इज मल्टीपल क्रॉपिंग एंड सेकेंड वन इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड। अब आपको ये जो क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, इन्हें आपको इस चैप्टर में से ढूंढ के सॉल्व करना है। इतना आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी आसानी से इन चीज़ों के बारे में समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे, विल द लैंड सस्टेन। थैंक यू।